नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार। जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव ने डंपिंग ग्राउंड में बायो माइनिंग परियोजना का किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव ने कूड़ा उठाने के लिए डंपिंग ग्राउंड में बायो माइनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। आज गौतम देव ने करीब 18 लाख रुपयों की लागत से इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। गौतम देव ने कहा कि समय के साथ शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, साथ ही शहर में कचरा भी बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही कचरे को वैकल्पिक रूप नहीं दिया जाता है तो आने वाले दिनों में यह अत्यधिक परेशानी का सबब बन जाएगा। इसलिए कचरे को वैकल्पिक रूप देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा शहर में कई कंपैक्टर मशीनें लगाने के बारे में भी योजनाएं बनाई जा रही है। Biomining and bioremediation. So we are using two machines here, Warrior 1200 and Tromer. So functioning as same for both the functions. Basically we are doing segregations of MSW material. Here segregation has been done in 3 parts. So more than 60 mm is called ideal part, less than 60 mm is called inert part, and third part is less than 10 mm, that is good soil we can say that. So almost we have completed 4 to 5 acre land. At the starting you can see the situations are very hygienic in the starting, but we have already completed 4 to 5 area of land right now. So hopefully we are going according to our target. So within the time stimulation we will complete the project. Thank you. পদ্ধতিতে বায়োমাইনিং হচ্ছে লিগ্যাসি ওয়েস্ট যেটা এখানে জমা হয়েছিল প্রায় 7.5 লাখ মেট্রিক টন, সেটাকে আমরা কনভার্ট করছি। এটা একটা রোটেট টমেটো রোড, এটা একটা টমেটো রোটেট মেশিন। এই মেশিনটাতে সেগ্রিগেটেড হচ্ছে, সমস্ত আবর্জনাগুলো সেগ্রিগেটেড হয়ে একটা সাইডে যাচ্ছে। এখান থেকে দুটো ভাগ হচ্ছে, একটা ভাগে গুড আটটা তলায় পড়ছে, আর বাকিটা সাইডে যাচ্ছে। আরেকটা মেশিন আছে, এই মেশিনটাতে এটা যেমন রোটেট মেশিন, ওটা ভাইব্রেটিং মেশিন, কিন্তু প্রসেস ইজ সেম। ওর কর্মক্ষমতা আরও বেশি, ওটা ফরেন মেড মেশিন। ওই মেশিনটাকে ওরা কাজে লাগাচ্ছে। টোটাল মেশিন কাজে লাগিয়ে ওদের যে টাইম ফ্রেম প্রোগ্রাম, বর্ষাকালে অসুবিধে হচ্ছে, এখানে হেভি রেনফল হচ্ছে, এটা একটু ড্রাই সিচুয়েশানে কাজটা করলে সুবিধে হয়। এটা ওরা সেগ্রিগেটেড করছে, ম্যানেজ করছে, যেটা যেখানে পাঠানোর সেইভাবে পাঠাচ্ছে। টোটাল গ্রিনফিল্ড বেস লাইন তৈরি করছে। এটা খুবই একটা বড় প্রজেক্ট কর্পোরেশনের হচ্ছে ফর দি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, ফর দি বেটারমেন্ট অফ দি শিলিগুড়ি পিপল। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের উদ্যোগে এটা হচ্ছে। কেএমডিএ টোটাল প্রজেক্টটা মনিটর করছে এবং এটা দিল্লি বেসড একটা কোম্পানি এই কাজটা করছে। খুব সুন্দরভাবে ভালোভাবে কাজ হচ্ছে এবং এরপরে ফেসটাও থাকবে, সারা বছরের চুক্তি থাকবে। বিভিন্ন জায়গায় সেগ্রিগেটেড মেটেরিয়ালস সেখান থেকে এখানে কম্প্যাক্টার স্টেশনে এসে এটা প্রতিদিনই প্রসেসড হবে। सिलीगुड़ी में टीकाकरण को लेकर अभी भी बवाल जारी। निर्धारित समय पर टीकाकरण शुरू न होने पर मातृ सदन में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के मातृ सदन में निर्धारित समय पर टीकाकरण शुरू न होने पर टीकाकरण के लिए आए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि लंबे समय से लाइन में खड़े रहने के बाद निर्धारित समय पर टीकाकरण शुरू न होने पर लाइन में खड़े लोगों ने क्षोभ प्रकट करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। टीकाकरण कराने आए लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि तड़के 4 बजे से 11 बजे तक वे लोग लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी स्वास्थ्यकर्मी समय पर नहीं पहुंचे। इस बीच नोटिस में लिखा गया था कि 120 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उक्त नोटिस के अनुसार टोकन नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी समय सीमा के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है।
दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही सिलीगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिस्थिति को नियंत्रित किया गया। দাঁড়ায় আছে না টোকো দিচ্ছে না কিছু আছে তো এত ভিড় বাট্টা মধ্যে আমাদের করোনাই ছড়াবে না তো প্রশাসনের নিচের লোক আশা প্রয়োজন আছে এখনো ভ্যাকসিনের কোনো লোক আসেনি। পুলিশ এসে আমাদেরকে বলছে যে আমাদের এখনো কুপন পাইনি। এখন মানে না খেয়ে নাকি কুপন মানে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না। এখন কুপন কখন পাবে, কখন খেতে যাবে, অনেকে প্রেশার ওষুধ খান, সিনিয়র সিটিজেন, কেউ এখনো বুঝতে পারছে না যে আসবেন কি আসবেন না। 3টা থেকে রাতে 3টা আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কেউ 3:30 থেকে কেউ 4টার সময় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের সবাই এখানে ভাইরা অনেকেই আছে যারা কিনা নাম নথিভুক্ত করেছে। তা আমরা চাচ্ছি যাদের এই নামগুলি নিয়েছে 120 জনের নাম করেছে, 64 জন কালকের আছে। তাহলে এখানে লেখা কেন 120 জনের নাম লেখা আছে? এই জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ভ্যাকসিন, সেই ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য সকাল 4টার থেকে কেউ 5টার থেকে কেউ 6টার থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বয়স্ক মানুষরা। সেখানে এখন বাজে 11:30, ভ্যাকসিনের কোনো লোকজন আসার নামগন্ধ নেই। তো এটা আমরা প্রশাসনের কাছে বলতে চাই যে ভ্যাকসিনের টাইমিংটা কি এবং প্রসিডিওরটা কি? সকালবেলা থেকে খালি পেটে লোকে দাঁড়িয়ে আছে, এবার কখন তারা আসবেন, কখন তাদের দয়া হবে আসার জন্য, এসে তারপরে টোকন দেবে কি দেবে না। আদৌ বহু বয়স্ক লোক যারা কোমরবিডিটিতে ভুগছে, কারো সুগার আছে, কারো অন্যান্য শরীর উপসর্গ আছে, মোস্ট অফ অল সিনিয়র সিটিজেন। আমরা নোটিশ দেখে এখানে যে লেখা আছে যে 120 জনকে সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হবে, সেই বুঝে আমরা রাত্রি 3টা-4টার থেকে এখানে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। সব সিনিয়র সিটিজেন লোক ধরতে গেলে বেশিরভাগই সবাই না খেয়ে সকাল সেই রাত্রি থেকে রাত 3টা-4টার থেকে এখন বাজে প্রায় 11টা বাজে জন্য তার কোনো খোঁজ খবর নেই। অথচ আমরা ওই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি যে কখন সে ডোজ আসবে, কখন আমাদের কুপন দেবে। কুপনটা যদি সময় মতো আমাদের দিত তাহলে আমরা একটু জল খাবার খেয়ে চলে আসতে পারতাম বা টিফিন খেয়ে চলে আসতে পারতাম। আজকে আমরা উপবাস করে রয়েছি এই পর্যন্ত, কেউ কিছু আবার খাইনি। হ্যাঁ, উপবাস করে কি ভ্যাকসিন নেওয়া যায়? क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 9 सदस्यीय प्रतिनिधि टोली ने करसंग के विधायक बीपी पचगाई से की मुलाकात, दिया ज्ञापन, उत्तर बंगाल के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करसंग आंचलिक समिति के 9 सदस्यों की एक टोली ने आज मंगलवार को करसंग के विधायक विष्णु प्रसाद बजगाई के साथ उनके निवास स्थल पर जाकर मुलाकात की और अपनी मांगों को एक ज्ञापन दिया। यह मुलाकात काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें उत्तर बंगाल और दार्जिलिंग पहाड़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वर्तमान समय में उत्तर बंगाल की स्थिति, पीपीएस को लेकर दिए गए प्रस्तुति, ग्रामीण क्षेत्र के विकास, पंचायत खंडों के विभाजन सहित अन्य गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करसंग आंचलिक समिति के सदस्यों ने आज विधायक से पहाड़ की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का अनुरोध किया। इस प्रतिनिधिमंडल में क्रामकपा के वरिष्ठ नेता बीएम राय, अर्जुन थापा, अरुण घतानी, रमेश राय, उद्धव खनाल, कृष्णबीर राय, भूपेन छेत्री, नीरज राय और मिलन छेत्री उपस्थित थे। आज प्रतिनिधिमंडल की ओर से एक ज्ञापन भी विधायक को सौंपा गया। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खरसाङ विधानसभा समष्टि कमिटीको तर्फबाट हाम्रा खरसाङ विधानसभा 24 खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका नवनिर्वाचित विधायक माननीय श्री बीपी बजगाईज्यूलाई उनको निवास स्थानमा पार्टीको 9 सदस्यीय एउटा प्रतिनिधि टोलीले भेटघाट गरेर एउटा स्मारक पत्र चढाएको छ। तपाईहरुलाई सर्वविदित भएको कुरा हो, आगामी 2 तारिखदेखि 17औं बंगाल विधानसभाको पहिलो सत्र सुरु हुन गइरहेको छ। हामीले हाम्रो यो दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रबाट 17औं विधानसभासम्ममा 17औं पल्ट विधानसभाका विधायकहरू निर्वाचित गरेर पठायौँ। ती निर्वाचित विधायकहरूले बंगालको विधानसभामा हाम्रो गोर्खाको अस्तित्व र अस्मिताको सवाललाई कहिले कसले कसरी उठाए त्यसको लेखाजोखा गर्न अझै बाँकी नै छ। ती विधायकहरूले कसैले सवाल उठाए होलान्, बंगाल विधानसभाले सुनेन, त्यो एउटा पक्ष छ। तर त्यहाँ वास्तविक रूपमा गोर्खाको अस्मिताको सवाल सठिक प्रकारले सम्बोधन भएन भन्ने कुरालाई नै हामीले आजसम्मको पछाडि फर्केर हेर्दा केही वास्तविकता पाएका छौँ। यसचोटि
जम्मै बङ्गाल सरकारको साम दाम दण्ड भेदको विरुद्धमा उनीहरूको शासक पक्षको जुन प्रकारको अन्याय र अत्याचार थियो त्यो सब हुँदै पनि यहाँका सत्तारूढ दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कडा परिश्रम गरेर हामीले भाजपा समर्थित भाजपा मनोनित गठबन्धन पार्टी समर्थित प्रार्थी दार्जिलिङ र खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट निर्वाचित गर्न पठायौँ। अब ती निर्वाचित विधायकहरूको दायित्वहरू जिम्मेवारीहरू के हुन्छन्? जुन भारतीय जनता पार्टीले बङ्गालको विधानसभा चुनावमा विजय हासिल गरिसकेपछि बङ्गाल विधानसभाबाट जुन कुराहरू गर्छु भन्ने प्रतिश्रुति दिएका थिए ती जम्मै प्रतिश्रुतिहरू निश्चित रूपमा बङ्गाल विधानसभामा भाजपाको बहुमत नआएको खण्डमा उनीहरूले गर्न नसक्लान्। तर बङ्गालको विधानसभामा हाम्रो जातीय सवाललाई सम्बोधन गर्नको निम्ति हाम्रा यी विधायकहरू जो एकजना बौद्धिक एकजना बुद्धिजीवी गोर्खाल्यान्डको प्रखर प्रवक्ता भएको नातामा बिबी बजगाईजीले उक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावान छौँ। कोरोना काल में बांस की बोतल की बढ़ती जा रही है मांग, इको फ्रेंडली के साथ साथ रोजगार का भरपूर अवसर। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण जहां बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं सिलीगुड़ी का एक युवक बांस से पानी का बोतल समेत अन्य दैनिक आवश्यकता की चीजें बनाकर आर्थिक समृद्धि के साथ लोगों को रोजगार दे रहा है। सिलीगुड़ी के गेट बाजार इलाके के रहने वाले देवाशीष कुंडू इन दिनों विभिन्न हस्त शिल्प कलाओं से लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिलीगुड़ी शहर व उसके आसपास लगने वाले हस्तशिल्प मेले में बांस की विभिन्न सामग्रियां देखने के बाद उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। देवाशीष कुंडू ने कहा कि इच्छा शक्ति महान शक्ति है। उन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने कभी भी छेनी और हथौड़ा नहीं पकड़ा, पर लगातार मेहनत व कठोर परीक्षा शक्ति से वे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वे अपने इस कारोबार को देश विदेश में फैलाना चाहते हैं। बांस से पानी का बोतल बनाने की प्रक्रिया के बाद उन्होंने कहा, पहले बांस को विभिन्न आकारों में काटा जाता है और फिर एक टब में पानी में डुबोया जाता है। यहाँ से बांस की बोतल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इको फ्रेंडली सामानों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खुद प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा, यदि कोई इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उन्हें निःशुल्क परीक्षण दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बांस की बोतल की बहुत मांग है। आज की युवा पीढ़ी इसमें अपना भविष्य संवार सकता है। চিন্তা ভাবনা হয়েছে প্রথম যখন লকডাউন হয় আর কি, আমার যেটা ব্যবসা আর কি, সেই ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এই চিন্তা ভাবনাটা আমার মাথার মধ্যে আসে আর কি। এটাকেই আরও বড় আকারে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। যুব সমাজকে এটাই বার্তা দেবো, আজকে কোভিডের জন্য প্রচুর আনএমপ্লয়মেন্ট হয়েছে আর কি, তো তারাও আমাদের সাথে একটা প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারে। প্রশিক্ষণটা পুরোটাই বিনামূল্যে আমরা দেব এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে তারা তাদের কাজ চালু করতে পারে, যেহেতু প্রচুর চাহিদা রয়েছে এই বোতলটার। আজ দিয়ে জলের বোতলের চিন্তাভাবনা, আমরা প্রথম একটা বাঁশের জলের বোতল দেখেছিলাম। এটা শুরুয়াত হয়েছিল আসামের একজন কেউ করেছিল, তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং রবিনা টন্ডন প্রত্যেকেই এই ব্যাপারটাকে খুবই এনকারেজ করেছে। তো ওটা আমার মাথায় এলো যে আমরা কেন পারবো না করতে। আসামে হচ্ছে, ত্রিপুরাতে কাজ হচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলও বাসে অনেক এগোতে পারে। তো সেই সূত্র ধরেই আমরা এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছি এবং ডেভেলপ করছি দিনকে। চাহিদা প্রচুর রয়েছে ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্টের। আজকের ডেটে হ্যান্ডক্রাফটেড ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্টের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। सिलीगुड़ी में नवजात का शव बरामद, इलाके में मची सनसनी, पुलिस ने शुरू किया जांच। सिलीगुड़ी नगर निगम के 2 नंबर वार्ड स्थित बागाजतन कॉलोनी के मुक्त मंच संलग्न महानंदा नदी के किनारे आज सुबह एक नवजात का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने आज सुबह नवजात को पड़ा देखा। इसके बाद इसकी जानकारी प्रधान नगर थाने की पुलिस को दे दी गई। खबर मिलते ही प्रधान नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। वहीं मौका वारदात पर एसीपी वेस्ट चंदन दास भी मौजूद रहे थे। इस बीच पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। বললাম এখানে শিশু পড়ে আছে, ঠিক আছে, তা আসলাম, তারপরে এসে প্রধাননগর থানাকে জানানো হলো। থানা আসলো, এসে ওনাদের কাজ করলো, অ্যাম্বুলেন্সকে ডাকলো, তারপরে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। এবার প্রশাসনের কাজ করবে। এই করুক, করাটা উচিত না, কারণ হচ্ছে এটা একটা পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, সেটা হওয়া উচিত না। যেই করুক
আচ্ছা একটা এখানে যে এই যে এলাকাতে কি মনে হয় এখানকারই আছে না কেউ বাইরে থেকে ফেলায় এরকম করে? সেটা তো দেখুন আমি বলতে পারছি না, ঠিক আছে। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरीबाड़ी बूढ़ागंज मंडल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से आज विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन खोरीबाड़ी बीडीओ कार्यालय के परिसर में किया गया। इस बीच विरोध प्रदर्शन की जानकारी देते हुए महिला मोर्चा मंडल की अध्यक्षा सुलता सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है, साथ ही राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। इसके अलावा राज्य में नारी असुरक्षित है समेत कई मांगों को लेकर आज महिला मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्षा सुलता सरकार, महासचिव दीप्ति परमन, सचिव अंजला बोराई समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रही थी। বিষয় হচ্ছে যে ভ্যাকসিন নিয়ে দুর্নীতি আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে, এই ভ্যাকসিন নিয়ে দুর্নীতি বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে। যেসব সেন্টারগুলিতে ভ্যাকসিনের চলছে কাজ, সেই সব সেন্টারগুলিতে ঠিক মতন কাজ হচ্ছে না এবং যেসব দুর্নীতি হচ্ছে ভ্যাকসিন নিয়ে, এই সব দুর্নীতিগুলো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এবং যে নারী সুরক্ষা, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের খুন করা হচ্ছে, ওদের রেপ করা হচ্ছে, পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, জ্যান্ত মারা হচ্ছে। কেন হবে? পশ্চিমবঙ্গে কি নারীদের কোনো সুরক্ষা নেই? পশ্চিমবঙ্গে কি নারীরা বাঁচতে পারবে না? আমরা সেই সকল নারীদের জন্য আজকে এই আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছি। আর আমাদের কি গণতন্ত্র বলে কোনো জিনিস নেই, আমরা নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করছি, তাই আজকে আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। एशियन हाईवे पर सेना की गाड़ी व ट्रक में सीधी टक्कर, केबिन में फंसा एक चालक, एक घायल। अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट में 48 नंबर एशियन हाईवे पर मंगलवार सुबह ट्रक एवं सेना के वाहन के आमने सामने की टक्कर को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मादरीहाट थाने के रंगलिया बजाना चौराहे में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे एशियन हाईवे 48 नंबर पर एक ट्रक और सेना के वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक का चालक केबिन में फंस गया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे केबिन से बाहर निकाला और बीरपाड़ा अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 48 नंबर एशियन हाईवे पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। पिछले 2 वर्षों में एशियन हाईवे पर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है और अब तक 54 लोगों की मौतें हो चुकी है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 128 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, 50,000 नकदी भी बरामद। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 128 ग्राम ब्राउन शुगर और नकदी बरामद की है। तस्करों को मंगलवार को रायगंज जिला अदालत में पेश किया गया। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यश वर्मा ने बताया कि तस्करों से पूछताछ के बाद कई और मादक पदार्थ तस्करों का सुराग मिला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रायगंज थाने के IC सूरज थापा के नेतृत्व में पुलिस बल सोमवार को रायगंज थाने के मधुपुर इलाके में तलाशी अभियान चलाया और 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सभी तस्कर रायगंज शहर के रहने वाले हैं। तस्करों के नाम सत्संग सारणी के देवव्रत रॉय, रविंद्रपल्ली के अरिजीत सरकार, शक्तिनगर के सत्यजीत महंत और वकीलपाड़ा के पीरपुकुर के रवि कहार है। रायगंज पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यश वर्मा ने कहा कि तस्करों के पास से 128 ग्राम ब्राउन शुगर और 50,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। चारों को मंगलवार को रायगंज जिला अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही रायगंज पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। रायगंज एरिया में ब्राउन शुगर का, ड्रग्स का एक बेशी प्रॉब्लम আছে। फिर गतकाल संध्या हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि NH बाईपास के पास मधुपुर नाम के एरिया में एक सोर्स की इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमारी टीम ने एक बहुत वेशी रेड कंडक्ट किया। वहाँ पर हमने 4 असामी पकड़े गए। इसके अलावा हमने अराउंड 15,000 रुपीज़ इन कैश और मोटा मोटी 125 ग्राम्स सस्पेक्टेड ब्राउन शुगर भी हमने सीज़ किए। इसके अलावा हमें एक बहुत बड़े नेटवर्क का भी पता चला है और भी नाम हमें पाए गए हैं जो दालखोला, हेमताबाद जैसे इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी से जानकारी के साथ हमें एक वाइडर नेटवर्क इनके पूरे ऑपरेशन का खुलासा करने का मौका मिलेगा। जो 4 अपराधी हैं हमने उन्हें यहाँ पर PC प्रेयर के लिए कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन और भी जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन के बाद की जाएगी। अभी के लिए बस इतना। क्या लग रहा है ये ब्राउन शुगर कहाँ से आया है, कहाँ तक पहुँचा होता? ये बातें हम वी वुड नॉट लाइक टू जंप टू कंक्लूजन्स, तो ये बातें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता करेंगे। बंगाल विभाजन की मांग के खिलाफ वाम मोर्चा ने खोला मोर्चा, सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल विभाजन की मांग के खिलाफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ अब वाम मोर्चा ने भी मोर्चा खोल दिया है। बंग भंग के खिलाफ मंगलवार को सिलीगुड़ी में वाम मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। सिलीगुड़ी के NTS मोड़ पर मंगलवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व पार्षद जय चक्रवर्ती के नेतृत्व में वाम मोर्चा समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे वाम मोर्चा नेताओं ने बंगाल विभाजन की मांग का कड़ा विरोध करते हुए कहा, बंगाल को किसी भी तरह से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। बारिश को नज़रअंदाज करते हुए आज वाम मोर्चा समर्थकों ने हाथों में लाल झंडा लेकर बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन लोगों ने पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों में लगातार वृद्धि का विरोध करते हुए कोलकाता में वैक्सीन घोटाले के दोषियों को
कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की। আমাদের আগামী 5 তারিখ পর্যন্ত এই সময়কালের মানুষের যা দাবি, সারা রাজ্য জুড়ে ভ্যাকসিনের, করোনা ভ্যাকসিনের বিরাট আকাল, মানুষ ভ্যাকসিন পাচ্ছেন না, চিকিৎসা কেন্দ্রে যাচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে চিকিৎসা করতে হচ্ছে। লকডাউনের সময় বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন। আমরা দাবি জানিয়েছি এই সময় যে সমস্ত মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। এবং এই সময়কালে আমরা দেখেছি যে কলকাতার বুকে দেবাঞ্জন দেব ভুয়ো আইএএস অফিসার যে ভুয়ো ভ্যাকসিন মানুষকে দিয়েছে, এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের সরকার এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবং আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে এই ভ্যাকসিনে যে আজকে যে প্রতারক দেবাঞ্জন দেব, তার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা, মন্ত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক, তাদের ছবি বিভিন্ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। তাহলে আমাদের দাবি যে একজন ভুয়ো আইএএস অফিসার 2019 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে সে এভাবে প্রতারণার কাজ করে চলেছে, রাজ্যের সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রীরা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের এই সমস্ত কাজ করছে, এবং আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। গতকাল ছাত্র যুবরা কলকাতার বুকে প্রতিবাদ করেছিলেন, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করে কাউকে আটকানো যাবে না। যত বেশি প্রতিবাদ আমরা করব, যত বেশি দমন পীড়ন হবে, তত প্রতিবাদ বাড়বে। सिक्किम के अलग अलग स्थानों में 4 लोगों ने की आत्महत्या। पश्चिम सिक्किम में एक युवक ने अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाने के बाद आत्महत्या कर ली है। घटना पश्चिम सिक्किम के गेजिंग थाना क्षेत्र के टाशडिंग क्षेत्र में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 23 वर्षीय युवक को ऑनलाइन गेमिंग खेलने की लत लगी थी। इस बीच 26 जून को उसने अपने माता पिता को गेम खेलने के लिए अपने मोबाइल इंटरनेट को रिचार्ज करने के लिए कहा था। हालांकि माता पिता ने बेटे को सलाह दी कि वह बिना रिचार्ज के दिन रात गेम खेलना बंद कर कुछ काम करे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक अपने माता पिता की बातें सुनकर उसी दिन घर से निकला था। रात में उसका शव पास के पहाड़ी पर लटका मिला। दूसरी ओर राज्य में सोमवार को 3 अन्य अलग अलग जगहों में भी खुदकुशी करने के मामले सामने आया है। नामची थाना क्षेत्र के अपर घुरपी से निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह डेंटाम थाना अंतर्गत लोअर राधू निवासी 60 वर्षीय और रानीपुल थाना अंतर्गत भुसुक निवासी 22 वर्षीय ने भी आत्महत्या कर ली है। सिक्किम राज्य में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हेमताबाद तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर से सामने आई पार्टी में गुटबाजी। पंचायत समिति के 13 सदस्यों ने लिखा सभापति को हटाने के लिए पत्र। तृणमूल कांग्रेस हेमताबाद ब्लॉक सभापति तथा हेमताबाद पंचायत समिति के सभापति शेखर रॉय को उनके पद से हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस जिला सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल के समक्ष पंचायत समिति के 13 सदस्यों ने लिखित रूप से आवेदन किया है। मांग की गई है कि शेखर रॉय को उनके पद से हटा दिया जाए। हालांकि इस बीच खुद शेखर रॉय ने जिला सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल से मुलाकात की और उनको हटाने के पीछे के कारण को जानना चाहा। हाल ही में अभी तक पंचायत समिति के सदस्यों की मांग को राज्य कमेटी के पास भेजा गया है और राज्य कमेटी की तरफ से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। राज्य कमेटी की तरफ से कोई पहल होने के बाद भी इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस में गुटबाजी काफ़ी चरम पर होती दिख रही है। आपको बता दें कि 2018 में हुए पंचायत समिति के चुनाव में कुल 15 सीटों में 14 सदस्य तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा का सदस्य जीता था। সেটা বিষয়ে আমার জানা আছে। এইভাবেই আমাকে জেলা সভাপতি ফোন করে বলেছিল যে আমার বিরুদ্ধে নাকি 13 জন পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার আমার অপসারণ চায়। তো আমি বলেছিলাম যে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই। তবে কী কারণে অপসারণটা সেটা একটু আমাকে জানাতে হবে, এবং আমার মনে হয় ওই বাকি যে 13 জন প্লাস আমি নাকি 14 জন সবাই মিলে একদিন ডাকুন, ডাকি যা ডিসিশন নেবেন সেটা না না সেটা এক একজন তো একরকম মানসিকতাভাবে দলটা করতে আসে। ওরা কী ধরনের মানসিকতা নিয়ে দলটা করতে এসে
আমার জানা নেই। কারণ আজ অবধি বড় বড় জায়গায় আমি ছিলাম, এই ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ আমি পাইনি। কারণ রাজনীতির জন্য যে রাজনীতি করতে হয় সেটা করলো না কিগুলো এখনো, যেহেতু আমার মানে ওদের লিখিত ব্যাপারটা এখন আমি কিছু জানি না, তার এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করি। অনাস্থার প্রস্তাবের কোনো ব্যাপার নেই। আহমেদাবাদের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা আমার কাছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে একটা চিঠি দিয়েছে যে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিজের মন মাফিক কাজ করছে। আমি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গে কথা বলে আমরা দলীয়ভাবে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নেব। ওনার বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত সমিতি যারা মেম্বার আছেন, মোটামুটি বলতে গেলে সবকটা মেম্বারই ওনার বিরুদ্ধে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন যে আমরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে সরাতে চাই, আপনি দলীয় স্তরে ব্যবস্থাটা গ্রহণ করুন। তা আমি পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে কথা বলে, সভাপতির সঙ্গে কথা বলে এই ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত, দলের সিদ্ধান্ত হয় সেটা আমি জানিয়ে দেব। আমাদের এখন রাজ্য নেতৃত্বের একটা নির্দেশ আমার কাছে আসছে, সেটাতে বলা হয়েছে যে কোনো অনাস্থা যদি আসে, এখনও আহমেদাবাদ পঞ্চায়েত সমিতি অনাস্থা আসেনি, কোনো অনাস্থা আসার আগেই জেলা সভাপতির মাধ্যমে সেটা রাজ্য স্তরে পাঠাতে হবে। রাজ্য স্তর অনুমোদন দিলেই সেটা অনাস্থাটা জমা হবে। এই জন্য অনাস্থা এখনও সরকারিভাবে কোথাও আসেনি, এটা দলগতভাবে জানিয়ে দিচ্ছে। সেটা আবার আমরা আগে ওদের সঙ্গে বসে দলীয় স্তরে বসার পরে আমাদের পুরো রিপোর্টিংটা রাজ্য স্তরে জানিয়ে দিব, তারপর ওনারা অ্যাপ্রুভাল দিলেই অনাস্থাটা জমা হবে সরকারিভাবে, নতবা নয়। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।